اخبار ہماری زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکا ہے۔ بغیر اخبار کے ہماری صبح ادھوری رہتی ہے۔ جب تک ساری دنیا کا حال ہماری دہلیز پر نہ پہنچے ہمیں چین نہیں آتا۔ شاید اسی لیے روزانہ مختلف اخباروں کی تقریباً 9 کروڑ کاپیاں ہر روز چھپ کر پریس سے باہر آتی ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر روز 2130 روزنامے شائع ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ یعنی 942 ہندی میں اور انگریزی میں ہر روز 201 اخبارات شائع ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ اور قابل فخر بات یہ ہے کہ روزنامے کی تعداد کے معاملے میں اردو زبان انگریزی سے صرف 10 عدد سے پیچھے ہے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں ہر روز 191 اخبار شائع ہوتے ہیں۔ اردو کے قارئین کی اخباروں میں دلچسپی آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے ہے جب ہندوستان میں لوگ صحافت کے نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ ہندوستان میں شاید اردو ہی وہ زبان ہے جس میں سب سے پہلے اخبار نکلنا شروع ہوئے۔ اگر اردو صحافت کی تاریخ ٹریس کی جائے تو معلوم ہوگا کہ 1857 میں نہ صرف یہ کہ دلی سے 2-3 روزنامچے نکلتے تھے حالات کی ڈائری کی صورت میں، بلکہ میرٹھ سے مستقل ایک اخبار بھی نکلتا تھا جس کے ایڈیٹر عظیم اللہ تھے اور جس اخبار کا نام غالباً پیام آزادی تھا۔ اس کے بعد ہندوستان میں ایک بنگالی نے اخبار شروع کیا، راجہ رام موہن رائے نے، کلکتہ سے، لیکن وہ اخبار بھی آدھا انگریزی میں اور آدھا فارسی میں ہوا کرتا تھا، جامع جہانما۔ تو اس طریقے سے اردو کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے ہندوستان میں صحافت کو متعارف کرایا۔ اردو اخباروں کی اتنی بڑی تعداد میں رجسٹر ہونے کے باوجود اردو اخباروں کے مدیروں، صحافیوں اور کالم نگاروں کی زبوحالی کا عجیب عالم رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دفتر، کام کاج کے وہی روایتی انداز، بے سر و سامانی کا عالم اور متروک ہو چکے وسائل کے ذریعے خبر نگاری کے سبب اردو اخبار تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ رہے ہوں، ان کی حالت ایسی تھی کہ نئی نسل اردو صحافت کی طرف قدم بڑھانے سے ڈرتی تھی۔ میں بعض ایسے اردو اخباروں کو جانتا ہوں جس میں ایڈیٹر اور کاتب یا ایڈیٹر اور کمپوز کرنے والا اور ایک آدھ دفتر میں کوئی اور، وہ بھی گھر کے لوگوں سے کام لیتے ہیں، کوئی ملازم نہیں۔ ان حالات میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عزیز برنی۔ اس کو میں نے دیکھا کہ ہتھیلی پر سرسوں کیسے جمائی جاتی ہے، اور راشٹریہ سہارا نے اس پر بھروسہ کیا، اس کی قابلیت پر، اس کی لگن پر، اس کی ہمت پر، اس کے حوصلے پر اور اس کے باعمل ہونے پر، اور اردو صحافت کے بارے میں اور اردو عوام تک پہنچنے کے لیے اس کا جو جذبہ ہے، اس کا جو ایقان ہے، وہ اتنا مضبوط ہے۔ اس نے دیکھتے ہی پلک جھپکتے میں اس اخبار کو کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ اردو صحافت کو ایک نئی زندگی عطا کرنے کے لیے ضروری تھا اردو اخباروں میں کاروباری رقابت کا جذبہ پیدا ہونا۔ تب ایک بڑے صنعتی گھرانے نے ایک ایسا اخبار نکالنے کی مہم شروع کی جس نے اردو اخباروں میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کر دی، اور اس انقلاب کا پرچم ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں میں دیا گیا جو ڈاکٹری چھوڑ کر صحافت کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس مسیحا نے اردو صحافت کے چہرے سے گرد ملاحت صاف کی، اردو اخبارات کو صحافت کے مقابلہ حسن کے سٹیج پر اتار دیا۔ آج دنیا ان کو عزیز برنی کہتی ہے۔ اتر پردیش کے ایک مشہور شہر بلند شہر میں ایک آئی سرجن کے گھر آنکھیں کھولنے والے ملک کے اس مشہور صحافی کی زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ہے۔ میرے والد محترم جناب ڈاکٹر عبدالحکیم خان چوہان صاحب
डॉक्टर थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बड़ा बेटा यानी कि मैं बहैसियत डॉक्टर अपनी शनाख्त बनाऊं। यही तालीम उन्होंने दिलाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ। उसके बाद लगा ये कि शायद मैं उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने की जद्दोजहद में आगे बढ़ रहा हूँ। फर्स्ट प्रेप में मैंने रिकॉर्ड भी कायम किया, जो इस बात की निशानदेही थी कि शायद मैं बहैसियत डॉक्टर अपनी शनाख्त बना पाऊँगा। लेकिन डॉक्टरी को बीच में इसलिए ही छोड़ना पड़ा कि एक सरकारी अस्पताल में ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक सियासी लीडर को अस्पताल के सबसे बड़े ओहदेदार से निहायत बदतमीजी से पेश आते हुए देखा। राजनारायण साहब पार्लियामेंट में पहुंचे और उनको हेल्थ मिनिस्टर बनने का मौका मिला। बुलंदशहर विजिट पर वो तशरीफ़ लाए। जैसे ही वहाँ पहुँचे उन्होंने सुप्रिटेंडेंट साहब को मुखातिब करके कहा, कौन है यहाँ सुप्रिटेंडेंट। जुमला कुछ मज़े के खेज था, लेकिन किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। आरबी लाल साहब आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का सुप्रिटेंडेंट हूँ। एक पेशेंट का नाम लिया, कहा कि वो कहाँ है। किसी वार्ड बॉय को ये इल्म था कि इस नाम का पेशेंट कौन है और कहाँ है, इसलिए उसने फ़ौरन कहा कि आइए मैं बताता हूँ वो कहाँ है, और सब उनके पीछे चल पड़े। और उन्होंने जिस तरह का मुजाहरा किया वो तमाम मेडिकल स्टाफ इंक्लूडिंग मेडिकल सुप्रिटेंडेंट और डॉक्टर्स के इंतहाई हद तक आमेज था। मुझे अच्छा नहीं लगा। हॉस्पिटल विज़िट एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टरी से अपने जहन को अलग करते हुए सहाफ़त की तरफ सोचा। इस जिद्दोजहद के दौरान उन्होंने 2 किताबों का तर्जुमा किया और एक नामवर गैर मुल्की खतीब के साथ मुतरजिम की हैसियत से भी काम किया। अलीगढ़ में बहरीन के एक साहब डॉक्टर शेख अली मोहम्मद मोहसिन लुत्फूर नाम था उनका, वो एक इदारा चलाते थे, हय्या अल फलाह सोसाइटी। उस इदारे के ज़रिए वो पब्लिशिंग का काम भी करते थे, अलिजात निकालते थे। मैंने शौकिया तौर पर कुछ किताबों का अंग्रेज़ी से उर्दू और हिंदी में तर्जुमा किया, जो किताबें मुझे याद पड़ती हैं। वो मॉरल्स ऑफ मोहम्मद आली मोहम्मद और फिलॉसफी ऑफ पर्ला। मेरी दोनों किताबें जब उन तक पहुँची तो दोनों को उन्होंने शाया किया। फिर वो खतीब बन गए, लेकिन ये उनका शौक था, पेशा नहीं। मिंबर रसूल पर बैठकर जो पहली तकरीर मैंने की, कई बड़े कद के लोगों ने जो उस वक्त फर्श पर बैठे थे बाद में आके मुझे मुबारकबाद दी। तो मुझे लगा कि अचानक मेरा कद बहुत बड़ा हो गया है, जिनके बराबर मैं ज़मीन पर बैठने के भी लायक नहीं हूँ। मैं उनके सामने मिंबर रसूल पर बैठकर तकरीर कर रहा हूँ और वो इज़्ज़त दे रहे हैं। उसके बाद मैंने फिर कई जगह मजलिसें पढ़ी और उसकी शोहरत पाकिस्तान तक भी पहुंची और मुझे अशरा पढ़ने के लिए कराची बुलाया गया। अक़ीदत की नज़रिए से मैं ज़िक्र अहले बैत से जुड़ा था। मैं हमेशा अपने आप को मुसलमान मानता हूँ, किसी बरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखता। इसी दौरान उनको एक मुजल्ले की इदारत का काम मिल गया और इस तरह अचानक उनके सामने वो करियर सरे तस्लीम खम किए खड़ा था जो उनका ख्वाब था। मैगज़ीन अल निजात हम निकालते हैं, इसकी इदारती जिम्मेदारियाँ देखो, और अलग अलग जगह मुझे स्पीचेस देने के लिए जाना होता है, तो बहैसियत इंटरप्रेटर मेरे साथ रहो। बहुत जगह मैं उनके साथ गया। इसके बाद बरनी साहब मुल्क के मशहूर सनती घराने से वाबस्ता हो गए और यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसका हर कदम एक मील का पत्थर बन गया। 1991 में एक महानामा की शक्ल में शुरुआत करने के बाद आज मुझे फ़ख्र है कि जो मौका मिला उर्दू सहाफ़त को आगे बढ़ने का, आज उसने एक तारीख़ रकम की है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सेंटर्स से शाया होने वाला, यानी 7 रियासतों में 9 सेंटर्स से
21 ایڈیشنز کے ساتھ شائع ہونے والا ہندوستان کا یہ واحد اردو روزنامہ ہے۔ ہم ہفتہ روزہ عالمی سہارا بھی نکالتے ہیں، منتھلی میگزین بزم سہارا، شاید اس اسٹینڈرڈ کا پوری دنیا میں کہیں سے بھی کوئی اردو میگزین شائع نہیں ہوتا ہے۔ اور بہت جلد ہم ٹی وی چینل کے ذریعے 24 گھنٹے کے ٹی وی چینل کے ذریعے بھی منظر عام پر آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے قبل اردو صحافت کے بارے میں جو ہندوستان کی رائے تھی اور درمیان میں یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ اردو کے آگے بڑھنے کے مواقع ختم ہو گئے ہیں، آج اس ادارے کے معرفت پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر تک یہ آواز پہنچ چکی ہے کہ اردو ایسی زبان نہیں ہے جو ختم ہو چکی ہے، بلکہ اردو کے اندر بھی بہت مواقع ہیں۔ اردو صحافت کی ہمہ جہت ترقی میں سیٹلائٹ کے رول پر برنی صاحب کے تاثرات۔ آج جب سیٹلائٹ کے ذریعے اردو زبان میں خبریں دیکھنے کو ملیں گی، سننے کو ملیں گی، تب صرف پڑھنے کی بات نہیں رہے گی، پوری دنیا میں تمام ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے ان خبروں کو اور خاص طور سے اقلیتی طبقے کی ان خبروں کو ہندوستان کے تعلق سے اور بین الاقوامی سطح سے پر مسلمانوں کے تعلق سے ان خبروں کو جو ایک دائرے میں محدود رہ جاتی تھی، آج بہت بڑے دائرے میں لے جانے کا موقع ملے گا۔ ہم خود اپنے ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے یہی کام انجام دینے کی کوشش کریں گے، اور دیگر جو چینل آج بھی ہیں، چاہے وہ ہندی زبان کے اپنے آپ کو کہتے ہوں، مگر ان کا جو اسکرپٹ ہے وہ بھی بہت حد تک اردو اسکرپٹ ہے، اردو والے اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ سہارا سے وابستگی کے بعد اردو صحافیوں اور اردو صحافت کی امیج اچانک تبدیل ہو گئی۔ اردو کے دوسرے اخباروں نے بھی گیٹ اپ اور کوریج پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ اس طرح فائدہ ہوا تو اردو صحافت کو ہی ہوا۔ انہوں نے اخبار کے گیٹ اپ کے ساتھ ساتھ اس کے معیار کو ایسا تبدیل کیا کہ بڑے بڑے اردو داں اس کے معترف ہو گئے۔ عزیز برنی کا ایڈیٹوریل کبھی کبھی جو فرنٹس پہلے صفحے پر ہوتا، فرنٹ پیج پر، لیڈر ایسا کمیٹڈ نیشنلسٹ، سیکولر، رواداری اور اردو جو گھیٹوز کی زبان بنائے ہوئے تھی یا سلمز کی زبان بنائے ہوئے تھی، اس کو وہاں سے اٹھا کے اور نیشنل مین سٹریم میں لانا اور پورے قومی دھارے سے اردو صحافت کو جس طرح سے جوڑ دیا، میں کہتا ہوں کہ یہ اخبار ایک بہت بڑے اردو کے طبقے کو ایجوکیٹ بھی کرتا ہے، ہر چیز کا اعلیٰ ستھرا اور ماڈریٹ ذوق پیدا کرنے کا بہت بڑا فریضہ عزیز برنی انجام دے۔ اردو میں چین آف پیپرز کی ہسٹری بھی موجود تو ہے۔ دو ایک اخبارات نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے ایڈیشنز دوسری جگہ سے بھی نکال سکیں، مگر کوئی کوشش بہت کامیاب نہیں ہو پائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ راشٹریہ سہارا وہ پہلا اخبار ہے جس نے ہندوستان کے کئی شہروں سے بیک وقت ایڈیشن نکالے اور کامیابی سے نکالے، اور اس کامیابی کا سارا کریڈٹ عزیز برنی کو جاتا ہے۔ عزیز برنی صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ اردو صحافت پر احسان یہ ہے کہ انہوں نے اس صحافت کو مسلمانوں سے تو جوڑے رکھا، لیکن اس کو وہ جو ایک جس کو تشتیکرن کہتے ہیں یا مسلمانوں کو سہلانے والی بہلانے والی سیاست ہوتی ہے، اسی کی خبریں دینا، اسی اینک سے سب کچھ دیکھنا، سب چیزوں کو، اور مسلمانوں کے علاوہ کچھ نہ سوچنا، اس چیز سے ذرا تھوڑا سا وہ آگے لے گئے۔ اخبار کے گیٹ اپ کی ایک جھلک برنی صاحب کے طرز زندگی میں بھی صاف طور پر جھلکتی ہے۔ فیشن میں ان کی دلچسپی، اپنے لباس کا ڈیزائن خود تیار کرنا، گھر کی آرائش کے لیے انٹیریئر ڈیزائنر کا کردار خود ادا کرنا، ہر چیز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے رہنا، رہن سہن کے اسٹائل میں انفرادیت پیدا کرنا، اور مصروف زندگی سے تفریح کے کچھ حسین پل نکال لینا برنی صاحب کی شخصیت کے دلچسپ پہلو ہیں۔ لیکن بقول شاعر، یہ پھول کہیں مجھ کو
विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मेरी ज़िंदगी में जो कांटे हैं वो हर पल मैं महसूस करता हूँ। मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी कहाँ है। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद के लोगों के दरमियान रह नहीं सकता। हर कदम पर वो लोग भी नाराज़ रहते हैं जिनकी उम्मीदों पे मैं पूरा नहीं उतरता। मेरी मजबूरी है कि मैं सबकी उम्मीदों पर पूरा उतर भी नहीं सकता। बरनी साहब की खुसूसी तहरीरें, इदारती मज़ामीन और तबसरे और बेशुमार किताबें इनको अजीज बरनी से हर दिल अजीज बरनी बना चुकी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। इन्होंने फिल्म की कहानियां भी लिखी हैं और कई फिल्मसाज इनकी कहानियों पर फिल्म बनाने की फिक्र में। बॉम्बे से सहाफत के अलावा मेरे कुछ और भी रिश्ते हैं। उनमें एक रिश्ता तो ये भी है कि मैंने भारत भाग्य विधाता और उसके बाद वांटेड 2 फिल्में लिखी। पहलाज निहलानी, शशि लाल नायर जैसे डायरेक्टर्स मेरी कहानियों पर फिल्म बनाना चाहते हैं। मैंने एक नावल पढ़ा था, प्रतिक्रिया। इट वॉज रिटन बाय श्री अजीज़ बरनी। मैं इनको लोकेट किया, इनके पास पहुँचे और मैंने उनसे कहा कि जितने मुझे वो गुजरात राइट्स ने हिला दिया उससे ज़्यादा मैं हिल गया आपके नावल पढ़ने से। आपने जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन करके इसकी रियल एक्चुअलिटी, फैक्चुअलिटी के साथ जैसे बताएं, तो मैंने कहा ये कैसे आपने ऐसा एक्सप्लेन किया। तो बोला मैं खुद वहाँ गए थे, मैंने खुद ये सब चीज़ें देखा था, सब कुछ हुआ था, तो आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड इट सो वेल। तो मैंने इनसे कहा कि आप मेरे लिए एक फ़िल्म इस पर लिख के दे सकते हैं। तो इन्होंने फिर वही नावल को एक स्क्रिप्ट के तरह से मुझे पेश किया और जब मैंने वो स्क्रिप्ट जब पढ़ा तो मैंने कहा ये नावल से भी बेटर लिखा है। मैं खुद 10-15 पिक्चरें बनाया हूँ लेकिन मुझे ऐसा राइटर, ऐसा एक्सप्रेसिव पर्सन मिला नहीं। तो मैं अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए इनके पीछे घूमते रहता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान मिले इससे। मगर बरनी साहब को शिकायत है अहले सियासत से कि वो उनके साथ मुखासमत रखते हैं। गो कि मैं सियासत में नहीं हूँ, लेकिन सियासी हरीफों की तादाद भी कुछ कम नहीं है। इसलिए कि वो चाहते हैं कि मैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलूँ। मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ और हमेशा मेरे जहन में एक ही बात रहती है कि अगर मुझे झुकना ही था तो अपने वालिद मोहतरम के सामने झुकना चाहिए था, वहाँ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था। अगर मैंने उनके सामने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उनकी बात को उसूल की बिना पर तस्लीम नहीं किया, तब फिर दुनिया में कोई और शख्स इस कद का नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी बात को तस्लीम कर दूँ। लेकिन इनके कलम की कदर करने वाले सियासतदान भी कम नहीं हैं। बरनी साहब की कंट्रीब्यूशंस और दूसरे फील्ड्स में भी बहुत हैं, मगर उर्दू को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ इन्होंने जो काम किया है आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, ये वो अखबार है जिसने सचमुच 21वीं सदी में उर्दू को एक बहुत ऊंचा रुतबा हिंदुस्तान में दिया है। उर्दू ज़ुबान के सिलसिले में और सहाफ़त में, उर्दू सहाफ़त में बिलखुसूस अजीज़ बरनी साहब ने जो किरदार अदा किया है, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ करते रहेंगे बड़े अरसे तक। और हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक उनको बड़ी उम्र दे और अपने तौफीक से उनके हाथ से ऐसे काम कराए जिससे अल्लाह पाक खुश हो। मैं उनको कहाँ देखना चाहता हूँ, जहाँ अल्लाह पाक उनको ले जाए कि जहाँ से देखने के वक्त में गांधी टोपी भी नीचे गिर सके। इतना ऊंचा आदमी हो गया है कि ऊपर देखने से टोपी गिर गई। उर्दू के अदीब और कलमकार तो अजीज बरनी साहब के गर्विदा हैं ही। अजीज बरनी का कमाल ये है कि ये पूरी हिंदुस्तानी सोसाइटी के बारे में सोचता है, ताज्जुब से अलग होकर के, और यकरंगी की बात करता है, सबके फलाह बहबूद की बात करता है। और बेबाकी सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि चाहे वो कोई भी इशू हो, मज़हब का इशू हो, सियासत का इशू हो, या दूसरे जो भी मसाइल है, तालीम का मसला हो या कोई भी मसला हो, जिस बेबाकी से उसने अपने ख्यालात का इजहार किया है, ऐसा मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग कर पाए। एक चीज़ मैं मान के चलता हूँ कि उर्दू सहाफ़त में अगर किसी और शख्स का नाम है तो मेरे दादा हुजूर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उन्होंने अल हिलाल और अल बलाग निकाल कर उर्दू सहाफ़त की जो एक बुनियाद डाली, कहीं ना कहीं बीच में वो बुनियाद जो है या तो कमज़ोर हो गई या ये है कि उर्दू सहाफ़त उस तरीक़े से नहीं चल पाई। लेकिन डॉक्टर अज़ीज़ बरनी ने उस बुनियाद को दोबारा रिवाइव किया, उसको रिजुविनेट किया, उसमें दोबारा उन्होंने जो है जान फूंकी। और आज अगर मौलाना आज़ाद का कोई सहाफ़ती वारिस है, सहाफ़त के मैदान में कोई वारिस है उनका, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि वो डॉक्टर अज़ीज़ बरनी हैं। अज़ीज़ बरनी के साथ उम्र है, वक्त है, बासलाहियत इंसान है, लिखने की क़ुव्वत है। तो मैं समझता हूँ उर्दू सहाफ़त को जज्बातियत की दलदल से निकालना और हकीकत पसंदी की तरफ ले जाना मुझ समेत और अज़ीज़ बरनी समेत तमाम उर्दू सहाफ़ियों का फ़र्क है। उर्दू का एक रोज़नामा जहाँ उर्दू सियासत तकरीबन ज़वाल का शिकार हो चुकी थी, उसको बेदारी और आगही के मनसब पर और मेन स्ट्रीम के मनसब पर ये अखबार ले आया है। राष्ट्रीय सहारा उर्दू ने अपने लिए जो शानदार जगह हासिल की है, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट अज़ीज़ बरनी को जाता है। और मैं समझता हूँ कि इनकी फ़आल शख्सियत की वजह से, और जिसको कहना चाहिए कि बहुत ही कमिटेड इंसान की कारकर्दगी, आला कारकर्दगी की वजह से आज उर्दू सहाफ़त का सर ऊंचा है। अजीज बरनी एक मुकर्रिर, मुफक्किर और एक सहाफ़ी हैं, लेकिन खुद को वो एक आशिक तसव्वुर करते हैं। हर काम को मैंने इश्क और जुनून की तरह किया है, चाहे वो सहाफ़त हो, चाहे खिताबत हो। देखिए, जितने भी जर्नलिस्ट हैं कमोबेश वो सियासतदान तो होते ही हैं। इलेक्शन पॉलिटिक्स में ज़रूर वो हिस्सा नहीं लेते, लेकिन सियासी समझ उनके अंदर होती है। इस लिहाज से मैं सियासतदान हूँ। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जिनको मैं मशवरा देता हूँ, बाकायदा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एडवाइज़र कैपेसिटी में भी रहा हूँ। उर्दू सहाफ़त के मेयार को बुलंद करने के लिए वो किस तरह से ताउन कर सकते हैं, इस पर आपका कहना था। जहाँ तक हमारे ताउन देने का ताल्लुक़ है, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा शायद वाहिद अखबार है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एडिशंस के साथ अवेलेबल है। और हम ये तमाम उर्दू के अखबारात को जो हिंदुस्तान के बाहर शाया होते हैं, उन्हें लिबर्टी देते हैं कि वो हमारी जिस खबर को चाहें वो अपने यहाँ शाया कर सकते हैं। इस तरह उनको हिंदुस्तान में अपने करस्पॉन्डेंट्स कायम किए बगैर हिंदुस्तान के गोशे गोशे की खबरें रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के इंटरनेट एडिशन के ज़रिए मिल सकती हैं, जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मुल्क के कई इलाकों में मुस्लिम वक्फ जायदादों पर गैर कानूनी कब्जे हो रहे हैं। इस मसले पर बरनी साहब ने फरमाया, कोई एक रियासत ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में वक्फ की जायदादों पर हुकूमतों की रजामंदी या उनकी साजिशों के चलते कब्ज़ा किया गया है। जब तक हुकूमतें ईमानदार नहीं होंगी, रज़ाकाराना तंजीमें ईमानदार नहीं होंगी, मुसलमान मुत्तहिद नहीं होंगे और मुश्तरका तहरीक नहीं चलाएंगे, तब तक इस तरह के कब्ज़ों पर कुछ भी करना या कुछ भी रोक पाना मुमकिन नहीं होगा। सहाफ़त को अपने करियर के तौर पर इख्तियार करने वाले नौजवानों को बरनी साहब कुछ मशवरे इन अल्फाज में देना चाहते हैं। पहले तो जहन में ये रखें कि ये महज एक प्रोफेशन नहीं है, एक पेशा नहीं है, बल्कि ये एक मिशन है और पूरे कमिटमेंट के साथ इसमें आना है और मुल्क और कौम की तस्वीर बदलने के जज्बे के साथ आना है। हर कीमत पर
सच्चाई को उजागर करने के जहन के साथ आना है। किसी भी ताकत के सामने झुकना नहीं है, किसी भी दौलत से मरूब होना नहीं है। यकीन जाने कि अगर वो इतने साबित कदम रहे तो दुनिया की हर बड़ी ताकत उनके सामने झुकेगी और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जितनी दौलत का तसव्वुर वो करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनको मिलेगी, उनकी सलाहियत की कीमत पर मिलेगी। जन्नत निशान बनाऊंगा हिंदुस्तान को, तारों से मैं सजाऊंगा अपने जहान को। जब मैं उतार लाऊंगा महताब व आफताब, रश्क होगा इस ज़मीं पे भी आसमान